Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series Ancient History through 500 MCQs. Now आज का चैप्टर होने वाला है हमारा The Mauryan Period. Now Mauryan Period के पहले जितने भी चैप्टर्स हैं that I have already completed and इन सभी चैप्टर की वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी अगर आप चैनल पे जाओगे तो. Now today हम कंप्लीट करेंगे मौर्यन पीरियड एंड आई कैन गारंटी यू दैट आफ्टर दिस वीडियो मौर्यन पीरियड के बाहर का कोई भी क्वेश्चन या मौर्यन पीरियड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा. आई कैन गारंटी यू दैट क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत कंसेप्चुअली पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर. मॉडर्न पीरियड हमारा पहला थीम होने वाला है द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सोर्सेज बट सोर्सेज को स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द सोर्सेज देखते हैं. नाउ मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड हमारे पास दो सोर्सेज अवेलेबल हैं. जैसे कि एज आई हैव टोल्ड यू इन द वैदिक लिटरेचर की क्लास में, वैदिक पीरियड की क्लास में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट basically there were two types of literature, that is the Shruti and Smriti. Shruti was that all of that was which was heard was known as Shruti literature, and Smriti मतलब जितना भी pass on किया गया and through memory which is written, this is the Smriti literature. श्रुति लिटरेचर किसको कंसिडर किया जाता था? तो वेदास को कंसिडर किया जाता था. द फोर वेदास वेयर कंसिडर्ड एज श्रुति लिटरेचर. जस्ट लाइक दैट एज द पीरियड प्रोग्रेस्ड तो हमारे पास बोथ लिटरेरी सोर्सेज भी थे विच वेयर रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ बुक एंड हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी थे. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ द कॉइन्स, इट कंसिस्ट ऑफ द एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा पॉटरीज, ऑल ऑफ दैट एक्सेप्ट दोज लिटरेरी सोर्सेज हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कवर होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियड हमारा स्टार्ट कब होता है? नाउ दिस एम्पायर वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य and it led to the foundation of the Mauryan dynasty. Now Chandragupta Maurya, he defeated the Nanda dynasty, he overthrew the Nanda dynasty and established the Mauryan dynasty. Okay, now Mauryan dynasty की sources की बात करें हम तो दो टाइप के sources हैं हमारे पास. The first one is literary, the other one is archaeological. Now what all are the literary sources? सबसे पहले तो अर्थशास्त्र, that was written on Kautilya and that was written by Kautilya and it shows an encyclopedic information about the polity and the government structure during the modern times. Okay, Kautilya is also said to be and to assist Chandragupta Maurya to overthrow the Nanda dynasty. So Kautilya name is important and he was associated with Chandragupta Maurya. Next important literary source was Indica, that was written by Megasthenes. Now he was a Greek ambassador who was sent by the Seleucus Nicator. He was sent by Seleucus Nicator to the Chandragupta Maurya court as an ambassador. He wrote Indica and in this Indica he told about the socio-economic position in the in the modern empire and he also defined that कि मौर्यन जो डायनेस्टी थी इसमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में 7 caste system was there and in addition to that slavery was not there. However, this fact that the slavery was not there in India, this fact was not appropriate, it is not appropriate. So ये बाद में जाके प्रूव हुआ था कि this fact was wrong, but Megasthenes के इंडिका में it was written that there was no slavery, there was absence of slavery in India. The another important source was Mudra Rakshasa. This was written by Vishak Dutt. Although this Mudra Rakshasa, this was written during the Gupta period, but it contains information about Chandragupta Maurya was assisted by Chanakya to overthrow the Nandas. This information was written in the Mudra Rakshasa. In addition to that, Purans are the also literary sources which gives information about the modern period and Buddhist literature. Now Buddhist literature is important here because कौन कौन से Buddhist literature है? तो सबसे पहले तो है Jataka,
Now this Jataka contains the stories about the Buddha's previous life and it is a part of Khuddak Nikaya. ये मैंने आपको already explain कर दिया है, so I will not go into the details of this. In addition to that, some of the texts that were written in Ceylon or the present day Sri Lanka, they were the Deepa Vamsha and Mahavamsha. And in addition to that, एक Tibetan Buddhist text है which was known as Divyadana. These were the Buddhist text that gives us information about the modern period. In addition to that, अगर archaeological sources की मैं बात करूं तो अशोकन edicts and अशोकास की inscription, इसके बारे में हम subsequent themes में बात करेंगे. I'll not go into the detail right now क्योंकि chronology से इस chapter को हमें ख़त्म करना है. Other inscriptions such as the Junagadh rock inscription of Rudradaman, Sogora copper plate which is situated in the present day Gorakhpur, and Mahasthan inscription which is situated in the present day Bangladesh. Now the places are also important. UPSC में questions जो हैं inscription से वो places के ऊपर ही पूछे जाते हैं. So ये places आप बिल्कुल note down कर लेना और ये questions में भी दिया है. So don't worry. Okay. So these basically are the sources. Let us now do the questions of this chapter and let us see. First question is, which is considered the most important literary source for the Mauryans, serving as a treatise on government and polity? Now, this information on government and polity, I have already told you that this was given by the Arthashastra, which was written by Kautilya. Okay, so C will be the right answer to this question. Indica की बात करें तो it was written by Megasthenes. Mudra Rakshasa by Vishakdatta, and Mahavamsha and Deepavamsha. These two were the Buddhist chronicles which were written in Ceylon or present day Sri Lanka. ये फैक्ट आप भूलेंगे नहीं. दीपवंशा एंड महावंशा में यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन. ओके Okay, Indica written by Megasthenes, Mudra Rakshasa by Vishakdatta, Mahavamsha is a Ceylon Buddhist chronicle plus Deepvamsha also. Okay, now next question is, who deciphered the Ashokan edict for the first time in 1837? अब Ashokan edicts की मैं बात करूं, so it was first deciphered by James Prinsep. Now if I tell you about the edicts, so यहाँ पे languages regarding the edict is very much important. So what all languages were used? सबसे पहले तो Prakrit was the main language in which these edicts were written. Other than that, there was some regional variation in the languages as well. And ये variations के बारे में you need to know. अब what all were the variation? सबसे पहले तो जो region wise variation हमें देखने को मिले, and Kharosthi is the utmost important यहाँ पे variation. Now this Kharosthi script जो थी, this was used in the northwestern part of the country. In addition to that, अगर मैं Greek की बात करूँ and Aramic की बात करूँ, these two were found in the western part of the country, and Brahmi, this was there in the parts of eastern India. अब ये ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट कैसे आई, क्या इनका प्रोफाउंड इनका इम्पैक्ट था, खारोस्ती स्क्रिप्ट कैसे आई, ये मैं ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में, महाजनपद के चैप्टर में मैं बता चुका हूँ कि हाउ द इन्वेजन्स ऑफ द ग्रीक, हाउ द इन्वेजन ऑफ द ईरानियन एम्पायर विच वॉज द इन्वेजन बाय डेरियस वन, कैसे इनका इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जिन्होंने ये वीडियोस देखी हैं, सम ऑफ यू आर फॉलोइंग द वीडियोस वेरी जुडिशियसली, सो आई कैन गारंटी यू दैट व्हेन दिस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज विल एंड, यू विल हैव दैट अटमोस्ट कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज. एंड अगर आपको मेंस भी लिखना पड़ेगा तो आपके पास एक क्रोनोलॉजी रहेगी कि चीज़ें कैसे हमारी चली हैं. ओके, नाउ डिसाइफर पहली बार किया था जेम्स प्रिंसेप ने. दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू नो. ओके, अलेक्जेंडर कनिंगम की मैं बात करूं, ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका भी नाम यू विल हैव टू नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
which script was used in the Ashokan inscription in the northwest region of India? अब ये हमने पहले ही देख लिया था. Kharosthi script was used in the northwest. Brahmi script was there in the East India. Greek script was in the west and Aramaic was also in the west. So यहाँ से edicts के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाने चाहिए. एक्सप्लेनेशन पार्ट भी यहाँ पे मेंशन्ड है. Now, next is which classical writer's work Indica mentioned the seven caste system and the absence of slavery in India. Now, this I have already explained you in detail that it was Megasthenes Indica. Indica में all this information was given. So I hope कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. Strabo, Justin, Pliny, these were other writers who quoted Megasthenes because जो original Indica थी that was written by Megasthenes, it was lost. ठीक है. And after that Strabo, Justin, Pliny, all of these wrote the commentaries on Indica. Next question is the drama Mudra Rakshasa describing how Chandragupta overthrew the Nandas was written by, pretty much easy question, अब तो easy होना चाहिए आपके लिए. It was written by Vishak Dutt. Okay, Harisena was court poet of Samudragupta and इनके बारे में हम गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ेंगे. Okay, so ये Harisen was in the court of Samudragupta. इस क्वेश्चन का आंसर इज विशाख दत्त. नाउ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीएससी में, एंड स्टेट पीएससी से भी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन का यूपीएससी है. ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो टेलिंग यू अबाउट द अशोकन इंस्क्रिप्शंस. एडिक्ट्स के बारे में हमने बात कर ली, कौन कौन से रीजन में थे, कौन कौन सी रीजनल वेरिएशंस थी. अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में. सो बेसिकली जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द रॉक एडिक्ट्स. अब रॉक एडिक्ट्स में द 3 टाइप्स ऑफ रॉक, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रॉक एडिक्ट्स है. सबसे पहला तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स. अब 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या था? सो प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म. अब ये धम्म क्या है? सो लेट मी गिव यू एन आइडिया. नाउ पहले क्या होता था? इट इज बिलीव्ड दैट अशोका जो लीडर था, अशोका के टाइम पे द मॉडर्न एम्पायर रीड्स टू इट्स एक्सटेंट, क्लाइमेक्स तक पहुंचा अशोका ये मॉडर्न एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका. ऑल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी. ऑल इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड हियर including Bangladesh and all of the area, except the southern area, except the south of India. ठीक है, except the southern part of India, that is the केरला तमिलनाडु का रीजन, थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द केरला ही था इसमें. सो बस ये रीजन was not a part of the modern dynasty. Other than that, all of the Indian subcontinent was the part. So when Ashoka reached East India, तो वहाँ पे a Kaling war was fought. कलिंग war was fought. Now this कलिंग वॉर के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट 13 से. ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सब पे हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द कंटेक्स्ट. नाउ आफ्टर कलिंग वॉज व्हाट हैपेंड वाज अशोका चेंज्ड हिज पॉलिसी फ्रॉम भेरी घोष टू धम्म घोष. अब व्हाट वाज दिस धम्म? सो दिस धम्म वाज कि द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज टू बी अवॉइडेड. ठीक है, अ पॉलिसी ऑफ इम्पैथी, द पॉलिसी ऑफ सिंपैथी वॉज हाईली यहाँ पे एविडेंट. नाउ पीपल का लॉस नहीं होना चाहिए, पीपल की लाइफ्स का लॉस नहीं होना चाहिए. दिस वॉज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम. ओके, नाउ अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? कलिंग वॉर के बाद में द पॉलिसी शिफ्टेड टू द धम्म घोष. ठीक है, नाउ अब ये जितने भी 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं एट डिफरेंट 14 प्लेसेस, इन सब में इंफॉर्मेशन जो दी है इसके बारे में दी है, प्रिंसिपल ऑफ धम्म के बारे में दी है. ठीक है, नाउ यही मुझे समझाना था कि व्हाट वाज धम्म. दिस वाज द चेंज ऑफ पॉलिसी. ओके, नेक्स्ट इज two minor rock addicts or 2 Kalinga rock addicts. These were situated in Dholi as well as the Jogada district, and दोनों के दोनों धौली एंड जोगोड़ा these are in ओडिशा. कलिंग रीजन क्योंकि हमारा ओडिशा में है. इसके अलावा इसके बाद में माइनर रॉक एडिक्ट्स आर देयर. 2 कलिंग रॉक एडिक्ट हमने देख लिया, माइनर रॉक एडिक्ट्स आर देयर. अब
माइनर रॉक एडिक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन थी? माइनर रॉक एडिक्ट में देयर वाज इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अशोका, हिस्ट्री ऑफ अशोका, एंड in addition to that summary of the धम्म। एंड कलिंग रॉक एडिक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन थी कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि द बेरी घोष, द पॉलिसी ऑफ बेरी घोष, इट वाज चेंज टू धम्म घोष। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज हुआ था आफ्टर द कलिंग वॉर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स में मिलती है, सॉरी कलिंग रॉक एडिक्ट में मिलती है। एंड एक जो फोर्थ मैंने बताया था आपको, दिस वाज द भाबरू एडिक्ट। अब भाबरू एडिक्ट में क्या मिला है कि अशोका वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम दी भाबरू रॉक एडिक्ट। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था 3 हमारे बेसिकली यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस थे। एक तो अब हमने देख लिया रॉक एडिक्ट्स, दीज आर द पिलर एडिक्ट्स। अब पिलर एडिक्ट्स में देयर वर 7 पिलर एडिक्ट्स विच वेयर द सपोर्टिव pillars to the major rock edicts. In addition to that, 4 minor pillar edicts. Ab, how was Ashoka greatly inclined and fanatic towards the policy of Dhamma? इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें 4 minor pillar edicts से मिलती है। And there are 2 Terai pillar edicts जिसके में Ashoka showed the respect to Buddhism। इसके बारे में all the information is given in the 2 Terai pillar inscript। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करता हूँ, लेट अस सी द क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लेसेस एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन प्लेसेस को आप ध्यान में रख लेना। आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा एग्जाम में, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। सो लेट अस स्टार्ट। विच मेजर रॉक एडिक्ट मेंशंस द कलिंग वॉर? ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बता दिया कि इट वॉज द 13th मेजर रॉक एडिक्ट। Okay, it was the 13th, sorry, yes, it was the 13th major rock edict। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो व्हाट वाज फॉलोड इन दिस, द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वाज फॉलोड। मानसेरा एंड शाहबाजगरी, ये जो 2 प्लेसेस हैं ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स, बोथ ऑफ दीज आर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जूनागढ़ इज इन गिरनार गुजरात, एंड ये गिरनार जो है दिस इज अ 2023 यूपीएससी PYQ। ओके, नाउ धौली एंड जौगाड़ा, दीज 2 आर इन ओडिशा। सोपारा इज इन महाराष्ट्र, कलसी इज इन देहरादून, येरागुड्डी इज इन आंध्र प्रदेश। सो ये सारे के जो नेम्स हैं एंड देयर प्लेसेस, ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहीं से आता है। ओके, नाउ द 13th major rock edict mentioned the Kaling War and 5 contemporary Hellenic kings or the Greek kings. Next is, in which edict does Ashoka declare all men are my children? This is again important. ये एक PYQ है, बहुत important है, so you need to know about this. So in the Kaling Rock Edict 1, the information is given about this। 2 कलिंग रॉक एडिक्ट से जिसमें कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंग वॉर के बारे में बात हुई थी, एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, एंड इट इज़ आफ्टर दिस कलिंग वॉर दैट अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्म, एंड इसके बाद ही अशोका ने डिक्लेयर किया था कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रंस, तो कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी वॉज एबॉलिश्ड। क्लियर है यहाँ पे, कलिंग रॉक एडिक्ट इज करेक्ट। नाउ विच एडिक्ट मेंशंस द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्रास? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में ही आ गया होगा। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ना, तो धम्म मीन्स व्हाट, इट वाज फॉलोड बाय अशोका। महामंत्रास मीन्स दोज द पर्सन हु विल मेक द पीपल फॉलो दिस धम्म। सो धम्म महामंत्रास, दीज वे आर अपॉइंटेड बाय अशोका। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि धम्म महामंत्रास वे आर अपॉइंटेड बाय, सो दे वे आर अपॉइंटेड बाय अशोका। एंड मेजर रॉक एडिक्ट 5 में देयर इज द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्रास, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, now the Bhabru Bairat edict is significant because it proves Ashoka's. So Bhabru Bairat inscription or edict, that was a major rock edict. This was found in the Rajasthan, this is in Rajasthan, and this edict shows the Ashoka's conversion to Buddhism। ये मैंने आपको बता दिया था, so problem इसमें नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज विच मेजर रॉक एडिक्ट prohibits animal sacrifices and festive gatherings. This was the major rock edict one. Okay, ये जितना भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इसके साथ जितना मैंने आपको रॉक एडिक्ट्स में बताया है, दैट इज ऑल. इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. अगर आपको इतना पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारी थीम है अबाउट द मौर्यन रूलर्स. अगर मॉडर्न रूलर्स की बात करें तो बेसिकली आपको तीन रूलर्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. द फर्स्ट वन वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य. सेकंड वन वाज बिंदुसार, और ये अपने मैं हायरार्की में बता रहा हूँ. थर्ड वन वाज अशोका. सो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य एंड इसके वर्क पे हैं, कुछ क्वेश्चन बिंदुसार पे हैं, कुछ क्वेश्चन अशोक में हैं. सो ये क्रोनोलॉजी से आपका मॉडर्न रूलर्स बहुत एफिशिएंटली कवर हो जाएगा. ठीक है, सो देखते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ग्रीक रूलर इन 305 BC. सो चंद्रगुप्त मौर्य ऑब्वियसली डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर. ठीक है, अलेक्जेंडर इज नॉट एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य बिकॉज व्हेन द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हैपेंड, धनानंद वाज देयर. ओके, नाउ एंड अलेक्जेंडर आल्सो डिफीटेड पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम. ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में. तो अगर आपने नहीं देखे उन लेक्चर्स को तो आप पहले प्लीज़ क्रोनोलॉजी में सीरीज़ को देखें, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बारे में बात करूं तो मेगास्थनीज वॉज सेंट, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर. ओके, एंड अगर मैं बात करूं तो ही रोड द बुक इंडिका, ये तो आपको पता ही होगा. इन एडिशन टू दैट, होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया वॉज यूनाइटेड अंडर चंद्रगुप्त मौर्य. Next important is that he overthrew the Nanda dynasty with the help of Chanakya, and Chanakya wrote Arthashastra. What is given in the Arthashastra? The structure of the government and the polity. इसके बारे में information है in the Arthashastra. Next important thing that happened during Chandragupta Maurya was trade flourished, agriculture की growth हुई थी, and standardized weights and measures were used during the Chandragupta Maurya. Okay. ना चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड है वुडन पैलेस, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन इट इज गिवन इन द मेगास्थनीज इंडिका. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य. इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोका को हमने देखा था कि अशोका फॉलोड बुद्धिज्म, बट चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ जैन. अब अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य along with भद्रबाहु he went to श्रवणबेला गांव. ठीक है, चंद्रगिरी हिल्स इन द श्रवणबेला गांव with भद्रबाहु where he died of the starvation. So चंद्रगुप्त मौर्य was follower of Jainism and दिगंबर सेक्ट का फॉलोअर था. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाई बाई स्लो starvation? Yes, Salikhan. So this was at the Shravanbela Gaon. Okay, he went to Chandragiri Hills, Shravanbela Gaon with Bhadrabahu where he died by slow starvation. Next देखते हैं. Next question is Bindusara was known to the Greeks by which name? Now Bindusara was the second ruler after the Chandragupta Maurya. So important facts about बिंदुसारा, इससे आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा. सबसे पहला तो ही वॉज नोन एज अ मित्रोक्रेट्स. इन एडिशन टू अ मित्रोक्रेट्स ही वॉज ऑल्सो नोन एज विंदुपाला, सिन्हासेना एंड भद्रासरा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कभी भी उठा के पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार एक रथ पूछा था, वो वॉज नोन एज एक रथ. सो महापद्मनंद वॉज नोन एज एक रथ. ठीक है, एक क्वेश्चन बहुतों को डिफिकल्ट भी लगा था, बट ये भी मैंने बताया है आपको. सो ये भी मैं यहाँ पे टाइटल्स लेके आ रहा हूँ बिंदुसार के. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में वी हैव सीन दैट नॉर्थ इंडिया वाज यूनाइटेड. बिंदुसार के टाइम पे द एक्सटेंट स्प्रेड टू डेक्कन. अब देखो हाउ डिड द मॉडर्न डायनेस्टी एक्सपैंड. अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया जो था, ये पूरा पोर्शन ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था. अब डेक्कन तक जो एक्सपैंड किया वो बिंदुसार के टाइम पे किया. एंड साउथ को छोड़ दें और ये पूरा नॉर्थ इंडियन, पूरा ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, ये सारा पार्ट अशोका के टाइम पे हुआ. तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप.
एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट अशोका के टाइम पे द मौर्यन डायनेस्टी रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से अब ये। ओके, सो ही वॉज नोन एज अ मिथ्रोक्रेट्स। अब अगर मैं बात करूं सैंड्रोकोटस, तो लेटर आइडेंटिफाई हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज नोन एज सैंड्रोकोटस। यहाँ पे मैंने लिखा भी है सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस, दिस रिफर्स टू चंद्रगुप्त मौर्य। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टाइटल, क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। क्लियर है? सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु वॉज द एम्बेसडर सेंट बाई एंटियोकस वन ऑफ सीरिया टू बिंदुसार्स कोर्ट। अभी यहाँ पे मैंने लिखा था, सॉरी बताना आपको भूल गया, एक्सटेंडेड डेक्कन एंड ही पेट्रोनाइज्ड अजीविकास, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पेट्रोनाइज्ड जैनास, बिंदुसार पेट्रोनाइज्ड अजीविकास एंड डाइमाकोस वाज सेंट एज एन ambassador. So who was the ambassador sent by the Antiochus I of Syria to Bindusar's court? It was Dimachos. Megasthenes came to Chandragupta Maurya and Dionysius came from Egypt. The names are also important. I hope that you have understood this with great extent. Okay, now next is yes, let's move to the next question. Now Ashoka fought the Kaling War in which year of coronation? Now अब बात आ गई अशोका पे। Now अशोका के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट तो एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ अगर अशोका की बात करें तो इट इज बिलीव्ड दैट ही किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर टू एक्सटेंड द थ्रोन। Under Ashoka's period, whole of the Indian subcontinent was a part of the modern empire. बस एक्सट्रीम साउथ का जो पोर्शन है, केरला का जो एरिया है, कुछ तमिलनाडु का कुछ एरिया है, दैट वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अशोका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने मेंशन किया है। नो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि व्हाट वेयर द डिफरेंट नेम्स ऑफ अशोका एंड वो कौन से एडिक्ट में मेंशन थे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले द नेम अशोका, हिज पर्सनल नेम, इज मेंशन्ड अंडर द मस्की इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट ऑफ कर्नाटका। देवनम प्रिया, दिस इज मेंशन्ड इन द उदयगोलम कर्नाटका। Ashoka as Raja of Magad is mentioned in the Bhabru inscription of Rajasthan. Ashok Vardhana, name of Ashoka, is mentioned in the Purans. Raja Ashok is mentioned in the Nittur rock edict, and Nittur rock edict कहाँ का? कर्नाटका। Next is Ashok Maurya name is mentioned in Junagadh rock inscription of Rudradaman, ठीक है, गुजरात। These are the important names. नाउ क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बट मेरे को आपको ये फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना था, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। अशोका फॉट द कलिंग वॉर इन विच ईयर ऑफ कोरोनेशन? सो दिस वाज द 9th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। नाउ इन विच इंस्क्रिप्शन डज द नेम अशोका, हिज पर्सनल नेम अपीयर? मैंने क्या बताया था आपको, अशोका नाम कहाँ पे आया है? मस्की आया है ना, तो कौन सा हुआ? मस्की गुजरा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, मस्की, गुजरा, नेतूर, उदयगोलम, दीज आर द 4 प्लेसेस जहाँ पे द पर्सनल नेम ऑफ अशोका मेंशंस। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, मस्की, नेतूर, उदयगोलम एंड गुजरा, ठीक है। मस्की कर्नाटका, गुजरा इंस्क्रिप्शन कहाँ था? गुजरा इंस्क्रिप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ था। ओके, लेट अस सी आपने कितना रिवाइज किया है। नेतूर उदयगोलम इज इन कर्नाटका। भाबरू बैरूत राजस्थान। कलसी देहरादून। रुम्मी देही पिलर इंस्क्रिप्शन, दिस इज इन नेपाल, जिसमें कि बर्थ के बारे में दिया है ऑफ द बुद्धा। ओके, पॉलिसी ऑफ धम्म घोष वॉज फॉलोड आफ्टर द कलिंग वॉर। सो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट इज हु वॉज द लास्ट मौर्य रूलर? सो दिस इज अ प्रीटी स्टैटिक पॉइंट। सो बृहद्रथा वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। अब अगर मौर्यंस के हमने फेमस रूलर्स की बात कर ली है, सो ये भी देख लेते हैं व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। सबसे पहले तो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हमारा नेक्स्ट थीम होने वाला है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा व्हेन आई टेल यू अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन कि क्यों मौर्यस का डिक्लाइन हुआ। इट वाज ऑन द पार्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द मंत्री परिषद हु यूज्ड टू हेल्प द किंग इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज।
Pacific policy of Ashoka after the Kalinga War. As I have told you, after the Kalinga War, the policy was transferred, the policy was changed from Behri Ghosh to Dhamma Ghosh. So no further conquest was there, although कलिंग को जीतने के बाद अशोका मेड कलिंग एज अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. सो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि फुल्ली अबैंडन नहीं किया था फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी को. इट वाज नॉट फुल्ली, कॉन्क्वेस्ट की पूरी पॉलिसी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अशोका, ऑल्दो धम्म वाज द प्राइम इंपॉर्टेंस आफ्टर द कलिंग वॉर. इसके अलावा पार्टीशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर. सो आफ्टर अशोका डाइट, basically the modern empire was divided into two parts: western modern empire and the eastern modern empire. The western modern empire was ruled by Kunal and eastern empire was ruled by Dashrath. Okay, now this last modern ruler Brihadratha, he was assassinated by his commander. Who was the commander? He was the Pushyamitra Shunga. अभी आप समझ गए होंगे, अब पुष्यमित्र शुंग है, शुंग डायनेस्टी है. जितनी भी पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स हैं, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. सो ये कंटिन्यूटी में आपको बहुत क्लियर होती जाएंगी चीज़ें. नेक्स्ट इज अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू विच कंट्री? ऑब्वियसली श्रीलंका में ही सेंट द मिशनरीज टू श्रीलंका टू स्प्रेड द बुद्धिज्म एंड धम्म. Which modern ruler is said to have built the city of Srinagar? अब मैंने आपको क्या बताया था. अभी मान लेते हैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता. मैंने यहाँ पे 3 फेमस रूलर्स की बात बताई है. सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका. अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया वॉज यूनाइटेड अंडर अ किंगडम. बिंदुसार के टाइम पे नॉर्थ इंडिया तो था ही, साथ में डेक्कन का एरिया था. एंड अशोका के टाइम पे मैंने क्या बताया? होल सब कॉन्टिनेंट. अब मुझे बताओ, श्रीनगर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, तो किसके टाइम पे ये सिटी बनी होगी? ऑब्वियसली अशोक के टाइम पे बनी होगी, क्योंकि श्रीनगर इज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नो. सो क्लाइमैक्स द मॉडर्न पीरियड में क्लाइमैक्स पे ही पहुंचा था अशोका के टाइम पे. सो लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एवरी क्वेश्चन दैट इज देयर इन द एग्जाम वो किसी कहीं से वो उठा के आया हो या किसी के कंटेंट से हो. दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. You have to develop that aptitude to eliminate the options. ओके, दशरथ मैंने अभी बताया आपको ईस्टर्न मॉडर्न एम्पायर का पार्ट था. एंड जब इनके बारे में यानी इनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में आपको पता है ना, क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट कर देंगे. कोई ऐसी सिटी का भी नाम दे देंगे आपको, कैसे कोई ऐसे एरिया का भी नाम दे देंगे जो किसी बुक में नहीं होगा ना, वो भी आप बता सकते हो कि हाँ इसके टाइम पे, इस रूलर के टाइम पे ये हुआ, तो कौन से रूलर के टाइम पे ये रीजन एक्वायर हुआ होगा. ठीक है. सो सम क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आल्सो सॉल्व्ड बाय द लॉजिक. नेक्स्ट इज हु assassinated the last modern ruler Brihadratha? This is Pushyamitra Shunga and he led to the establishment of Shunga dynasty. नेक्स्ट अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ से भी यूपीएससी एंड द स्टेट पीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. एंड अपकमिंग जो पेपर्स है ना सीजीएल वगैरह के वनडे एग्जामिनेशन में, ये अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन मिस होंगे. एंड आपको पता है मैथ्स सब लोग बना लेते हैं, रीजनिंग सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट जीएस इज़ द थिंग, जीके इज़ द थिंग and current affairs is the thing that is making a difference. You need to prepare these subjects. बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, बट एटलीस्ट जो पूछा जा रहा है जो प्रीवियस ईयर्स में, अब यूपीएससी से ऊपर तो नहीं जा सकते ना ये एग्ज़ाम्स, तो जितना मैं करवा रहा हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द कंटेंट एंड इसको फॉलो करो. देन एमसीक्यूज लगा के देखो, पीवाईक्यूज लगा के देखो कि ये कितना रेलिवेंट है, तब आपको समझ में आएगा कि येस दिस थिंग इज़ वर्किंग. Okay, so let us now talk about the administration of the modern empire. Now let us see the administration of the modern empire. See, basically this administration wala part can be divided into 3 parts. The first one is the central administration, the second one is the provincial, and the third one is the municipal administration. एंड अगर हम फोर्थ की बात करें तो आर्मी कैन बी कंसिडर्ड एज एन यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये आर्मी को हम इसी में कंसिडर कर लेंगे. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. सो एज वी नो दैट द मौर्यन एम्पायर वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड
एंड इसकी हायरार्की में द टॉप मोस्ट पोजिशन वॉज ऑक्यूपाइड बाई द किंग हिमसेल्फ एंड to assist the king there was the mantri parishad or the council of ministers. Now these council of minister considered this council of minister, this included three important posts. The first one was the yuvraj, who was the crown prince. Purohita was there to aid and assist the king, and senapati, who was the commander in chief of the other ministers, he was also in this mantri parishad. Now this was all. Okay, the king used to work on the Saptang theory that was propounded by the Arthashastra that was propounded by Kautilya. Now, the important thing about the important officials, we will discuss that in the question in a later part. But let us start with the first question regarding administration. And जैसे ही हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, we will talk about the details of that. Now, in the Saptang theory of Kautilya, which element represented the eyes? Now, Kautilya propounded the Saptang theory. Now, this Saptang theory, he told that there are 7 parts of this theory. There are 7 elements of the state. The first one is the Raja, who was the king. Next was the Amatya, who was the secretary. The third was the Mitra, which was friend. Kosha was there, which represented treasure. In addition to that, Janpad represented the territory, and Durg was called as fort, and Kosha was the treasury. ये तो यहाँ पे given ही है. Sena was the army. Now here this Amatya or secretaries represented the eyes. ठीक है. So ये symbol is not important, but you need to know about the Saptang theory of Kautilya and the elements that were included in this theory. Okay. 7 elements हैं हमारे: राजा, मत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र. The king is the soul. Amatyas are the Amatyas were traditionally the eyes. Now the next question is, who was Samaharta in the Mauryan administration? अब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के important officials हैं. Now इन officials के नाम you need to know. अब let us see some of the important officials. And यहाँ से UPSC तो question पूछता ही है. In addition to that, state PSC में भी question आते हैं इस particular topic से. So let us see the officials that were there during that time. Now, Sannidhata, this was the treasury officer, the chief treasury officer. Next was the Vyavarika. He was in charge of the civil court. Pradeshta was in charge of the criminal court. Both of these are very, very important. Okay. In addition to that, मैं बता दूं, Samaharta, he was the collector of the revenue. Vyavarika, we have seen, an official of civil court. Pradeshta, an official of the criminal court. Now, next important official was Dhamma Mahamatra. Now, Dharma Mahamatra, this post was specifically created during the time of Ashoka to propagate Dhamma. This we have already discussed जब हम अशोका के reign के बारे में बात कर रहे थे. Okay. Now, this Dhamma Mahamatras had the dual functions. The first function was to propagate Dhamma and to take care of all the citizens that were residing at that time. Next was the Pradeshika, Rajuka, Yukta. These were the district level officers. And ये question last year 2025 मतलब this year के UPSC 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेशिका, राजुका, युक्ता, these were whom? So these were the district level officer. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नगरक was an important official of the city administration. So सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रॉडली ये पोस्ट होते थे एंड पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारे पोस्ट थे. ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे. अभी के लिए इस क्वेश्चन में लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ. हु वाज द समाहर्ता इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? सो समाहर्ता वाज द कलेक्टर जनरल ऑफ द रेवेन्यू. ये मैंने आपको बताया भी था.
Sannidhata was the chief treasury officer and Samartha was the collector of revenue. Okay, so ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए. Let us now move to the next question, which is which official was responsible for surveying and assessing land. Now particular work से related अब ये different हमारे पास post हैं. So let us look into this. Now Sita Adhyaksha, the Sita Adhyaksha were the superintendent of agriculture. Panya Adhyaksha, a Panya or Pana during the Mauryan time was related to coins, and coins हमें पता है is related to the economy of an country. So Pana Adhyaksha or the Adhyaksha that was relating to coins was the superintendent of commerce. Next was the Samastha Adhyaksha. तो समस्था संस्था, इसको संस्था आप पढ़ सकते हैं. दिस संस्था अध्यक्ष was related to the superintendent of market. Next is the Pautava Adhyaksha. Pautava it meant weights and measures. जो आप कभी भी कोई सामान परचेज करने जाते हो तो वहाँ पे वो वेट से मेजर करते हैं. मोस्टली दी वेजिटेबल सेलर्स they use these weights. So the superintendent who used to take care of these weights and measures, he was known as the Pautava Adhyakshas. Next is Shulka. Shulka क्या होता था? Shulka was a type of tax or toll. So collection of the tolls, the superintendent who took the care of the collection of the tolls was known as Shulka Adhyaksha. Next is the अकराध्यक्षस. अकराध्यक्षस तो दिस वॉज रिलेटेड टू माइंस. एंड ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, 110% आ सकता है. सो यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स. ओके, इसके अलावा लोहाध्यक्षस वेयर ऑल्सो देयर. लोहा मीन्स व्हाट? आयरन. तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन वॉज द लोहाध्यक्षस. Let us now see the question. Which official was responsible for surveying and assessing the land? It was Rajuka. We have already seen Yukta, Rajuka, all of these were the district level officers. Okay, so Rajukas were the later day patwaris responsible for surveying and assessing the land. अब most of the post we have already discussed. अब हमें कुछ नहीं करना है. अब सिर्फ हमें इसको प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ व्हाट द सीता अध्यक्ष वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ. अब हमने देखा सबसे पहले सीता अध्यक्ष वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सो ही वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर. पान्य अध्यक्ष, पान्य मिंट कॉइन्स. अभी इसी लेक्चर में मैं याद भी करवा दूंगा आपको, सो दैट कि आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े. ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर्स का, तो ये आप बहुत ही एफिशिएंटली रिवाइज इसको कर पाओ. ओके, so Panya Adhyaksha, Panya meant coin, so the superintendent of commerce. Akara Adhyaksha, ये सबसे हमने लास्ट में पढ़ा था, and he was the superintendent of mines. Pautava meant weights and measures, so the superintendent of weights and measures was known as Pautava Adhyakshas. Now अभी तक जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दैट वे आर रिलेटेड टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. अब बात करते हैं हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था. नाउ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो बेसिकली देयर वेयर 5 प्रोविंसेस, इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर. नाउ इन प्रोविंसेस से रिलेटेड सिर्फ आपको प्रोविंसेस को जानना है एंड उनकी कैपिटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट प्रोविंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज उत्तरापंथ, the capital of which was Takshila. Second was the Avanti Rashtra. Avanti we know was in the part of Malwa, so this is the Ujjain. Third province was Prachi, जिसका की कैपिटल था पाटलिपुत्र. अब ये याद रखना, P for Prachi, P से पाटलिपुत्र. Fourth province Kaling was located in Toshali. Fifth Dakshin Panth was located in Suvarnagiri. Okay, 5 प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए. अब बात करते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन. व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द दक्षिण पंथ प्रोविंस? सो दिस वाज सुवर्णगिरी. उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस अवंती. तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ उत्तर पंथ. स्वर्णगिरी वाज द कैपिटल ऑफ दक्षिण पंथ एंड तोशाली वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग. क्लियर है? नो, The head of the district administration was known as, ये हमने पहले ही देख लिया था, this was known as Pradeshika. Pradeshika, Rajuka, Yukta, all of these
3, all of these were associated with the district level officers, and ये UPSC में भी क्वेश्चन आया था. So this questions become very very important. Next is, who was the Sunny Datta? He was the chief treasury officer. We have already seen this. Important है ये. कलेक्टर ऑफ टोल्स को क्या बोलते थे? शुल्काध्यक्षास. सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स, ये क्या होता था? नावाध्यक्षास. नावा बाय नेम ही आप बता पाओगे कि ये नावाध्यक्षास वेयर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द शिप्स. ओके. नेक्स्ट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज. तो जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि नगरका वॉज द चार्ज ऑफ द सिटी लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहीं से वी कैन स्टार्ट विथ आवर थर्ड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. अब अगर मैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो कौटिल्याज की अर्थशास्त्र में देयर इज अ सेपरेट चैप्टर दैट इज गिवन टू द नगरका. Now, Nagaraka is the city administration, the officer in charge of city administration. That is why this post becomes important. Now, what was the chief duty of Nagarak? So, the chief duty of his was to maintain the law and order. Law and order को maintain करने की responsibility होती थी. Now, अब यहाँ पे city administration से related मेगास्थनीज की इंडिका में there has been a reference to the system of the administration. Now इस सिस्टम में ये बताया गया था कि there were 6 committees in the cities. All of these 6 committees had 5 members each. अब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे हुआ, कि what were these committees made for. तो सबसे पहले इसको मैं क्रोनोलॉजिकल वे में बताता हूँ आपको. सबसे पहले तो पॉपुलेशन आएगी. तो पॉपुलेशन कैसे आएगी? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड एक कमिटी होती थी. नेक्स्ट इज वाज द कमिटी दैट वाज रिलेटेड टू फॉरेनर्स. द थर्ड कमिटी की मैं बात करूं, वी नो दैट ट्रेड का बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस था. तो ट्रेड, इंडस्ट्रियल आर्ट्स और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक कमिटी थी. देन इंडस्ट्रियल आर्ट एंड और द इंडस्ट्रीज़ के लिए एक कमिटी थी. इसके अलावा अगर मैं फिफ्थ एंड लास्ट कमेटी की बात करूं तो पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के रिगार्डिंग एक कमेटी थी. एंड जो लास्ट कमेटी थी, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए कमेटी थी. ऑल ऑफ दीज कमेटीज का यहाँ पे मेंशन किया गया है बाय मेगास्थनीज इन हिज बुक इंडिका, एंड ऑल ऑफ द नेम्स ऑफ दिस 6 कमेटीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्लियर है यहाँ पे? सो हमने अभी तक क्या देखा? हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि किंग वॉज एट द टॉप एंड ही वॉज असिस्टेड बाय द मंत्री परिषद. मंत्री परिषद में भी युवराज वॉज देयर, पुरोहिता वॉज देयर एंड द सेनापति वॉज देयर. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या देखा? हमने देखा 5 प्रोविंसेस थी, इनकी कैपिटल्स को देखा. एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने यहाँ पे इफेक्टिवली देख लिया. ठीक है. सो नगरका is the main and important person that was related to the municipal administration during the Mauryan times. Next is Dharmasthya Nyayalay. It referred to the civil court. Okay. ये एक अच्छा फैक्ट मुझे लगा, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन. तो धर्मस्थीय न्यायालय वॉज द सिविल कोर्ट, एंड क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोलते थे? द क्रिमिनल कोर्ट वॉज कॉल्ड द कंटक शोधन न्यायालय. सो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज हु वेयर द गुधा पुरुषास. नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा. अब मैं बात करूँगा इन गुध पुरुषा से पहले 4th लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे वो. सो इट वॉज द आर्मी. सो आर्मी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो देयर वॉज अ ह्यूज आर्मी दैट वॉज मेंटेन्ड बाय द मॉडर्न एम्पायर. सो डिस्पाइट दे रूल्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, एंड अशोका के टाइम पे लेटर इट स्प्रेड टू द एरियाज ऑफ डेक्कन ऑल्सो एंड द एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो, एक्सेप्ट few portions of Kerala. All of the Indian subcontinent was under the control of Ashoka. So with the huge army they also maintained the navy. तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में they can ask you that which of the following statement regarding the Mughal administration or the Mughal armies are true. So they maintained a huge army.
दे डिड नॉट हैव अ नेवी। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, बिकॉज द मौर्यंस ऑब्वियसली हैड अ बिग नेवी। ठीक है। नाउ मेगास्थनीज अगेन हैज गिवन एन अकाउंट ऑफ what all was included in the army of the modern empires. So इन्फेंट्री होती थी, कैवेलरी होती थी, एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स थे, नेवी होती थी. So all of these elements were the elements, active elements in the army of the modern empire. Now in addition to that, modern period is also known for the spies. So जो यहाँ पे आपने टर्म देखा है ना, गुद्ध पुरुषास, दीज वेयर द डिटेक्टिव्स एंड द स्पाइज ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर. ओके. एंड इन एडिशन टू दिस गुद्ध पुरुषास, संस्थान एंड संचारी, these were also a category of spies. So this is pretty important thing you need to know. ठीक है. गुद्ध पुरुषास, संस्थान एंड संचारी, all of these were the detectives or the spies. ठीक है. Next is, let us now talk about the economy and the society of the modern empire. अब बेसिक अगर मैं समरी दूं आपको अबाउट द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, सो इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव सीन दैट सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था. द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड. इट मीन्स दैट स्टेट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड वी हैव ऑल्सो सीन मेनी ऑफ द पोस्ट्स that were created, many of the officials that were appointed were in charge of the इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स के सुपरिटेंडेंट को क्या बोलते थे? पान्य अध्यक्षा. सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट वॉज नोन एज संस्था अध्यक्ष. ओके. वेट्स एंड मेजर्स के सुपरिटेंडेंट को क्या बोलते थे? पौटवाध्यक्ष. सो दिस शोज दैट all of these officials were appointed under the control of the central administration and the economy was highly centralized. जो टैक्स रेट हुआ करता था वो इट वॉज फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द टैक्स ऑफ द प्रोड्यूस. ऑल्सो द स्टेट प्रोवाइडेड द इरीगेशन फैसिलिटीज, जिसको सेतु बंद बोलते थे. इन एडिशन टू दैट, वाटर टैक्स वॉज ऑल्सो चार्ज फ्रॉम द सिटीजन्स. ओके. द स्टेट और द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंजॉयड मोनोपोली ओवर द माइनिंग एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट की एक्टिविटीज़ के ऊपर में उनकी सोल कंट्रोल होता था. नाउ इकोनॉमी में फेमाइंस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड फेमाइंस से रिलेटेड यहाँ पे दो इंस्क्रिप्शन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इन इंस्क्रिप्शंस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. द फर्स्ट इज द सोगोड़ा कॉपर प्लेट विच इज लोकेटेड इन गोरखपुर, which is in UP, present day UP. And the second, if I talk about, is Mahasthana, which is located in the present day Bangladesh. Now, these two inscriptions have the information about the relief measures that were provided by the state during the times of famine. So, ये famine के टाइम पे जब state ने relief provide किया था to the people, to the citizens of their empire. So this information about this relief measures were given in the Sogoda copper plate, which is present in the present day Uttar Pradesh, and the Mahasthan copper plate, Mahasthan inscription, which is located in the current day Bangladesh. This was all about the economy वाला part. Okay. सोसाइटी जहाँ से स्टार्ट होगी, मैं सोसाइटी के बारे में वहाँ पे आपको थोड़ा सा समरी दे दूंगा. Now, let us see now the questions. What was the tax rate collected from the peasants during the modern period? मैंने बताया था 1/4 to 1/6 of the produce was taxed. इकोनॉमी के बारे में बात करें, इरिगेशन फैसिलिटीज वेयर प्रोवाइडेड, दैट इज दी सेतु, दैट वाज नोन एज सेतुबंद. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाज देयर, स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था, एंड देयर वाज द स्टेट मोनोपोली ओवर द माइनिंग, फॉरेस्ट एंड these such type of things. In addition to that, ports यहाँ पे important है. Two of the ports during the modern period are very much important. तो Bharuch and Supara, these ports were in the west coast of the country, and the Tamralipti which is in Bengal. And ये Tamralipti ना, ये important port होता था गुप्ताज के भी टाइम पे. So ये पूछते हैं वो कि Tamralipti is related to what? So it was a port which is situated in present day Bengal. दोनों यहाँ पे questions बन सकते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें कॉइन्स चाहिए. सो अ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द पंच मार्क्ड कॉइन्स was prevalent during the modern period,
एंड ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे दे वेयर मोस्टली मेड अप ऑफ सिल्वर एंड इसको पाना भी बोलते थे। एंड इसी पाना से रिलेटेड पानाध्यक्ष वॉज अ पोस्ट हमने डिस्कस किया था विच वॉज रिलेटेड टू कॉमर्स। सो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है आपको हिस्ट्री याद करनी है, अगर आप लिंकेज एंड एक फ्लो के साथ पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा एंड आप चीज़ों को समझ भी पाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन ऑल दैट आई वांटेड टू गिव। क्वेश्चंस देखते हैं अब, मेरे ख्याल से मोस्टली क्वेश्चंस आप बना ही लोगे। Which inscription deals with the relief measures to be adopted during a famine? So this was given in the Sogoda copper plate. Sogoda के साथ साथ it was also given in the Mahasthan inscription that is located in the present day Bangladesh. Musky edict मैंने पढ़ाया था, क्या था? Was related to the personal name of Ashoka. जूनागढ़ inscription रुद्रदमन. Okay, Rumideri pillar was related to the Buddhism. तो ये नहीं कि आगे का जब भी आप पढ़ो तो पिछला टॉपिक रिवाइज करना भूल जाओ, सारा आपको माइंड में एंड यू शुड हैव ऑल दिस थिंग्स ऑन योर टिप्स। एटलीस्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी रैंडम आपको नहीं बता रहा हूँ। ऑल द थिंग्स दैट इज एसोसिएटेड विद द एग्जाम ओनली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर्स का मतलब नहीं बनता है। तो क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको स्टैटिक भी बता रहा हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं मैं मोस्ट ऑफ देम मैं कवर कर लूँ। एंड इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ आना चाहिए। 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल फ्रॉम द दिस सीरीज ओनली, जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को देखा है वो इस बात को समझ रहे होंगे एंड वो क्वेश्चंस लगा के आई वुड रिकमेंड यू ऑल, जिन्होंने भी लेक्चर्स देखे हैं कंसिस्टेंटली, यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर दिस। एमसीक्यू सॉल्व करना, मॉक्स लगा के देखना, यू विल फील द डिफरेंस। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ईमेल भी कर सकते हो आप, वो प्रोवाइडेड है चैनल के पेज पे। मुझे आप रिव्यू दे सकते हो कि और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और आपने जो सीरीज़ देखी है इससे आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपके मार्क्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये आप मुझे बता सकते हो। सो लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। ये अभी मैंने बताया है, ये सॉल्वेबल होगा। भरूच, सुपारा। अब मैंने आपको बताया था भरूच और सुपारा दोनों के दोनों वेस्टर्न कोस्ट थे। ताम्रलिप्ति मैंने बताया था इट वॉज सिचुएटेड इन बंगाल, एंड बंगाल जो है कौन से रीजन में है कंट्री के? ईस्टर्न पार्ट में ही तो है। तो समझ में आया, सी इज द आंसर, लॉजिक है यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ करेंसी वाज कॉमन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था आपको? पंच मार्क्ड कॉइन्स दैट वेयर मेड अप ऑफ सिल्वर, पाना भी बोलते थे इसको, एंड इसको गवर्न करने के लिए देयर वाज एन ऑफिशियल दैट वाज रिलेटेड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ही वाज नोन एज पाना अध्यक्ष। सिंपल है, क्लियर है। गोल्ड कॉइन्स दिनार, अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको पता होगा गुप्ता पीरियड में द गोल्ड कॉइन्स आर नोन एज दिनार। निष्का भी एक चीज हुआ करती थी वैदिक पीरियड में, मैंने बताया था अर्लियर इट वाज अ ज्वेलरी वैदिक पीरियड के टाइम पे। लेटर टाइम्स में इसको कॉइन्स के टर्म्स में देखा जाने लगा। निष्का वाज आल्सो मेड अप ऑफ गोल्ड। अर्लियर इट वॉज ज्वेलरी, लेटर टाइम्स में इसको कॉइन भी बोलते थे, बट वैदिक पीरियड के टाइम में मोस्टली जो स्टार्ट हुआ था इसका इट वॉज ज्वेलरी। निष्का वॉज ज्वेलरी बट लेटर दिस वॉज कॉइन। समझ आ गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास। अब आ गई बात हमारी सोसाइटी की, तो सोसाइटी के बारे में समरी देख लेते हैं थोड़ी सी एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। सो सोसाइटी की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य हमने देखा मॉडर्न पीरियड से पहले वी हैव सीन दैट इन द वैदिक पीरियड ऑल्सो द ऋग वेदा पीरियड और द अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे देयर वाज नो डिवीजन ऑफ द कास्ट। ठीक है, द सोसाइटी वाज प्रीटी मच फ्लेक्सिबल एंड द पर्सन कैन चेंज हिज कास्ट और द पर्सन कैन चेंज his status in the society based on his occupation. So if he was skilled well enough, he can easily move from a lower caste to the higher caste. But what happened during the later Vedic period was that caste proliferation happened on a larger basis, and due to this what happened was the society was divided into 4 castes and intermigration among the different caste. It means that ब्राह्मण से क्या कहते हैं, ब्राह्मण, वैश्य,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दीज वर द 4 क्लास. पहले क्या होता था कि वैश्य, इफ ही वाज the occupation that he was doing, he was skilled enough, he can easily move to the Brahmanism during the time of Rig Vedic period. But later Vedic time पे the caste rule and the societal rules became that much rigid that ये intermigration was not possible. The one that was born as a Shudra will remain Shudra despite of whatever talent he has or whatever occupation he does. So intermigration among the caste was not possible. So there was caste rigidity that was seen during the later Vedic period. Now during the modern periods this caste rigidity was not there. ठीक है, वर्ण system was not that rigid. Okay, as per कौटिल्य, शूद्रास को कंसिडर किया जाता था एज एन आर्यन कम्युनिटी. ओके, सो ये बताता है कि कास्ट सिस्टम वाज नॉट दैट रिजिड. मेगास्थनीज की बात करें तो ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस. अब कौन सी 7 क्लासेस थी यहीं पे देख लेते हैं. सबसे पहले तो थे फिलोसफर, इंडिया इज़ वेल नोन फॉर फिलोसफर. फार्मर्स तो होंगे ही होंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे सोसाइटी का जितना मैंने बताया. इसके अलावा इकोनॉमी होती थी, ठीक है, सोल्जर्स होते थे, आर्मी, हर्ड्समैन होते थे, आर्टिसंस होते थे. आर्टिसंस थे तभी तो प्रोडक्ट बना के बेच रहे थे. उसके बाद में काउंसलर्स होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे. हमने देखा था ना, देयर वाज सिविल कोर्ट एंड देयर वाज क्रिमिनल कोर्ट. तो कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा? कन्फ्यूजन आपको काउंसिल्स में हो सकता है. बट ये भी मैंने आपको बता दिया है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस में डिफरेंट काउंसिल्स वेयर मेड. सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसिल्स वाज देयर जिसमें 5 मेंबर्स होते थे. तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए. 7 जो हमारे ये थे डिविजन्स थे सोसाइटी में, वो 7 वो कह रहा हूँ मैं, द 7 क्लासेस वेयर दीज ओनली. एंड इन एडिशन टू दैट मेगास्थनीज का अकाउंट उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी. वाई? बिकॉज मेगास्थनीज स्टेटेड दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया. बट दिस वॉज नॉट ट्रू. बिकॉज मेगास्थनीज ने जो ये बोला था ना, उसने इंडिया की स्लेवरी को कंपेयर किया था वेस्ट की स्लेवरी से. वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था, उतना ऑपरेशन इंडिया में नहीं होता था. बट दिस अकाउंट वॉज नॉट ट्रू दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया. तो जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे एंड आपको फॉरेन सोर्सेज पे क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द मेगास्थनीज इंडिका, तो आप सारा अकाउंट दे सकते हो. मैंने आज स्टैटिक चैप्टर में कितना बताया आपको. मेगास्थनीज के इंडिया में क्या हमें मिलता है? सोशियो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप कैसे बताओगे? मैंने आपको काउंसिल्स के बारे में बताया, इसके बारे में बता सकते हो आप. सोसाइटी के बारे में बताया आपको कि 7 पार्ट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी. उसका ड्रॉबैक आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि मेगास्थनीज ने ये डिक्लेयर किया था कि देयर वाज नो स्लेवरी बट दिस अकाउंट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट. सो सारा कुछ यहीं रिवॉल्व करना है, बस आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए. ओके, सो स्लेवरी के बारे में बता दिया. अब वुमेन की पोजीशन को देख लेते हैं, क्योंकि ऋग वैदिक टाइम लेटर वैदिक पीरियड में तो काफ़ी ऑपरेशन होता था. सो अगर वुमेन्स की बात करूँ तो वो उनकी जो पोजीशन थी दैट वाज वेरी मच बेटर. ओके, उनकी पोजीशन बेटर थी एज कम्पेयर टू द वैदिक टाइम्स. एंड द वुमेन्स ऑल्सो हैड राइट टू ऑल्सो हैव द प्रिविलेज टू डाइवोर्स और रीमैरी. ओके, वुमेन्स वे आर ऑल्सो अपॉइंटेड एज द पर्सनल बॉडी गार्ड ऑफ द किंग्स. सो ये 3 चीज़ें हैं वुमेन्स के रिगार्डिंग. इतना काफ़ी है सोसाइटी के पार्ट के लिए. सो लेट अस सी. अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? इजी क्वेश्चन है. अभी हमने देखा था कितनी क्लासेस हैं, 7 क्लासेस हैं. These were philosophers, farmers, soldiers, herdsmen, artisans, magistrates and counselors. This I was already told you. Okay. Next देखते हैं. Which of the following statement regarding slavery in modern India is true? अब Megasthenes said slavery existed. Indian sources says it didn't. तो गलत है. Megasthenes said there was no slavery. Indian sources confirms it existed. तो अभी मैंने बताया कि this slavery के बारे में जो Megasthenes से बताया था, this was a drawback of his sayings about the modern empire. So B statement हमारा correct है. According to the Indian sources like Arthashastra, slavery was the recognized institution during the modern period. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा है सेतु बंध. अब ये क्या था?
ये इरिगेशन फैसिलिटीज दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। पाना बताया तो था, दिस वाज अ सिल्वर कॉइन which was also known as the punch marked coins. ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ। मॉडर्न आर्किटेक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। नाउ द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये तो पता ही होगा। Lion capital of Sarnath, this is related to the modern empire and this is also the national emblem of India. So this was adopted on 26 January 1950. Okay. Next is Barabar caves is located in, अब मैंने आपको बताया था Barabar caves are the example of rock cut architecture during the modern period and these were located in the present day Gaya, Bihar. Now, Yakshini of Didarganj is a famous example of. So these were the example of popular art. पर्शियन आर्ट होगा नहीं, ग्रीक आर्ट होगा नहीं, रॉयल आर्ट होगा नहीं, तो फोक आर्ट ही तो होगा। ऑल्सो एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्टोन मैसनरी दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, ये एक यूनिक पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंगल बुल कैपिटल इज फाउंड एट। अब ये जो बुल से रिगार्डिंग है ना, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब फोर लायन कैपिटल, यहाँ पे ये चीज़ को याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। और फोर लायन कैपिटल की मैं बात करूँ, दिस वॉज एट सारनाथ, दो प्लेसेस पे मिली हैं, दिस वॉज एट सारनाथ एंड सांची, डन है। नेक्स्ट इज द सिंगल लायन कैपिटल, तो ये जो सिंगल लायन कैपिटल है दिस इज सिचुएटेड इन रामपुरवा एंड Lauria, Nandgarh, and both of these places are situated in Bihar. This is the single line capital. Next is the single bull capital. तो single bull capital जो है this was situated in Rampurwa only. And अगर मैं बात करूँ a carved elephant, a carved elephant जो है that is found at Dholi. And एक engraved elephant था, दिस इंग्रेव्ड एलिफेंट वॉज फाउंड एट कलसी। इतना बस कर लो, इससे ज़्यादा यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यक्ष यक्षिणीज वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने बताया आपको यहाँ से ही आ सकते हैं, इसमें भी चांसेस कम है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो सिंगल बुल कैपिटल इज एट रामपुरवा, सारनाथ एंड सांची, दीज आर द फोर लाइन कैपिटल। Next question is where were the remains of 80 pillared hall found? So ये 80 pillared hall this was found in Kumrar, Patna. Next is which traveler remarked about the Mauryan palace? These palaces are the creation of God rather than the of the man. Now Fahian when he came to India he visited Patliputra and वहाँ पे पैलेस देख के in Kumrar which is in Patliputra he gave this statement. So इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना ये लूसेंट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लूसेंट से लिया मैंने। नो अब हमारा आ गया मिसलेनियस का पार्ट जिसमें कि बेसिकली हम रिवीजन ही करेंगे। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं, 5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, सो इसके बाद चैप्टर खत्म है आपका। ओके, सो विच टर्म वॉज यूज बाय विशाखदत्त इन मुद्रा राक्षसा टू डिस्क्राइब चंद्रगुप्ता। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मुद्रा राक्षसा है दिस वॉज नॉट रिटन ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स, इट वॉज फिनिश ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बट इट गेव एन डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, सो विशाख दत्त की बुक में चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज वृषला और कुलाहीना, इट मीन्स बिलोंगिंग टू द लोअर क्लैन। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वॉज द मौर्यन गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त टाइम? सो दिस वॉज पुष्यगुप्ता। ओके,
Pushyagupta was a Vaishya. He governed Saurashtra under the Chandragupta. Tushapa was a Yavan king, governed it under Ashoka. तो ये कंटेम्प्रेरी रूलर्स के नाम के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछ सकते हैं हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्ता. सो यहाँ पे पुष्यगुप्ता. सो अगर आपसे पूछेंगे कि सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वॉज कंट्रोल्ड बाय और रूल्ड बाय, तो आप तुषापा आंसर करोगे. क्लियर है. लेट्स नाउ सी दी अनदर क्वेश्चन. हु रिप्लेस्ड बेरी घोष विद धम्म घोष. अब इस पे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है. दिस वॉज अशोका एंड इट वॉज आफ्टर द कलिंग वॉर this happened that he replaced the Beri Ghosh with Dhamma Ghosh. Okay. Ashoka abandoned the policy of physical occupation, Beri Ghosh, in the favor of cultural conquest, that was Dhamma Ghosh. Okay. Now with this we have completed our chapter of the modern empire. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर पढ़ के. अगर बेनिफिट हो रहा है इस सीरीज़ से तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं. अगर लाइक नहीं भी करना है तो कोई नहीं, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर फीलिंग आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.